friends, welcome to English Minds. Today we will discussing on most important 100 must know MCQs on Alfred Tennyson, crafted especially for TGT, PGT, UGC NET and all major English literature exam. Get ready to master kids' life works and ideas with sharp exam focused questions. Let's unlock the secret of this romantic genius together. Stay focused, stay inspired. Let's begin without delay. So, today's very first question: in which year was Alfred Lord Tennyson born? In 1809, 6th August. The fourth child, इनका चौथा नंबर था. द फोर्थ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 12 मीन्स सिबलिंग. 12 नंबर इनका चौथा. एंड डेथ 6 अक्टूबर. अगस्त से सिमिलर ही है. 6 अक्टूबर वेल 1892 मीन्स इतना तो कॉमन ही है. ओनली 2 ऐड करना है, 0 हटाना है, लास्ट में 2 ऐड करना है. तो देन सिमिलर. At Ellsworth, beside him, a volume of Shakespeare opened at the Dirge in Cymbeline. Father George Clayton, who had some skill in music, painting, and architecture, and Mother Elizabeth, an intelligent, pious, and dutiful lady. Some fact about Tennyson: Frederick and Charles who were Tennyson's brothers, were also poets. In 1826, poem of two brothers appeared. This collection also had some poem of the third daughter Tennyson. In 1829, he won the Chancellor Medal for his blank verse poem Timbuktu. In 1830, his first volume poem, chiefly lyrical, was published. Arthur Hallam was his friend. The friend also loved Tennyson's sister Emily, but he died. His death inspired him to write poems which were included in In Memoriam. Tennyson fell in love with the rose bearing, but this love ended in failure as her father did not wish to get her daughter married to a poor man like Tennyson. Next, Tennyson was born in which English county known for its influence on his pastoral imagery? Lincolnshire. Option A is correct answer. टेनिसन का जन्म सॉमर्स बाय लिंकनशायर में हुआ. इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने उनकी पेस्टोरल पोइट्री को बहुत प्रभावित किया. लिंकनशायर के रूरल सीन्स उनकी कविताओं में बार बार दिखाई देते हैं, जैसे द ब्रुक इन मेमोरियम और टीयर्स आइडल टीयर्स. नेक्स्ट, what was the name of Tennyson's father whose troubled life impacted his early years? George Clayton Tennyson. Option A is correct answer. उनके फादर रेव जॉर्ज क्लेटन टेनिसन एक क्लर्जीमैन पादरी थे जो मेंटल इलनेस और अल्कोहलिज्म से स्ट्रगल कर रहे थे. इस पारिवारिक संघर्ष ने टेनिसन के अर्ली लाइफ को डीपली प्रभावित किया और उनके काव्य मेलंकली, उदासी और इनवर्ड रिफ्लेक्शन दिखाई देती है उनके काव्य में. नेक्स्ट, which Cambridge University Society did Tennyson join, fostering his early literary connections? Option A, the Apostle.
टेनिसन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस और इंटेलेक्चुअल ग्रुप द एपोस्टल को ज्वाइन किया। यहीं पर उनकी मुलाकात आर्थर हेनरी हेलम से हुई, जो उनके जीवन और लेखन दोनों में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। द एपोस्टल एक ऐसा ग्रुप है जहां सीरियस फिलोसॉफिकल और लिटरेरी डिस्कशन होते हैं। नेक्स्ट, Tennyson's early poetic career was shaped by the loss of which close friend, inspiring in memoriam Arthur Henry Hallam. Oh, A A A H H. Option A is correct answer. In memoriam, arise and fly, the reeling swan, the sensual feast, move upward, working out the beast, and let the ape and tiger die. In memoriam, आर्थर हेनरी हेलम टेनिसन को सबसे करीबी दोस्त और उनकी बहन के फियांसे द 1833 में हेलम की सडनली मृत्यु ने टेनिसन के को गहरे शोक में डाल दिया। इसी दुख से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सबसे महान एलेजिक पोयम इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलन को लिखी, जो ग्रीफ, फेथ और डाउट का पोइटिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, in which year was Tennyson appointed Poet Laureate of the United Kingdom? Option B 1850, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1850 में ब्रिटेन का पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद यह पद उन्हें क्वीन विक्टोरिया द्वारा दिया गया। उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, लगभग 42 इयर्स 1850 टू 1892 एंड उन्होंने इस पद पर रहते हुए द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड 1854 जैसे प्रसिद्ध युद्ध कविता लिखी, जो क्रिमेन वार के ब्रिटिश सिवरली की वीरता पर आधारित थी। उनकी लॉरियटशिप ने उन्हें राष्ट्रीय कवि, नेशनल पोएट का दर्जा दिलाया। नेक्स्ट, which monarch offered Tennyson a baronetcy which he initially declined? Option A Queen Victoria. क्वीन विक्टोरिया टेनिसन की कविताओं से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्होंने पहले 1865 में टेनिसन को की पेशकश की, किसकी? बारोनेटसी, जिसे उन्होंने निजी स्वभाव के कारण ठुकरा दिया। लेकिन 1884 में पीरेज अपर नोबेलिटी टाइटल स्वीकार कर लिया। वे बायरन टेनिसन को एल्डवर्थ और फ्रेशवाटर कहलाए। यह पहले साहित्यकार बने जिसे यह उपाधि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दी गई। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी कविता न केवल साहित्यिक बल्कि राजकीय और सामाजिक प्रभाव भी था उनके कविताओं में। नेक्स्ट, Tennyson's family estate Farringdon is located on which island? Option A Isles of Wight. फेरिंगफ्रोड हाउस टेनिसन का स्थायी निवास था, जो एल्स ऑफ विट पर स्थित था। उन्होंने यह संपत्ति 1853 में खरीदी थी। यह घर फ्रेश वाटर विलेज के पास है और यहाँ इंग्लिश चैनल का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहीं पर उन्होंने मॉड, द एडल्स ऑफ द किंग्स, इन मेमोरियम, ऑन आर्थर हेनरी हेलम जैसी कविताओं पर कार्य किया।
आज यह स्थल टेनिसन ट्रायल और हेरिटेज टूरिज्म का हिस्सा है। नेक्स्ट, which mental health condition did Tennyson fear he inherited from his family? Melancholia. टेनिसन का परिवार मानसिक अस्थिरता से पीड़ित था। उनके पिता जॉर्ज क्लेटन टेनिसन एक ट्रबल्ड क्लर्जीमैन थे जो अल्कोहलिज्म और एपिलेप्सी से ग्रसित थे। उनके कई भाई बहनों को मानसिक रोग हुए, जैसे एक भाई को असाइलम भेजा गया, दूसरा भाई ओपियम एडिक्ट था। इस पारिवारिक इतिहास के कारण टेनिसन को हमेशा डर रहता था कि किसी भी मेलंकोलियक ग्लूमी डिप्रेशन से ग्रसित हो सकते हैं। इसका भय उनके इस भय का असर उनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है, जैसे मैरियाना, द लोटस ईटर्स एंड इन मेमोरियम में। नेक्स्ट, Tennyson's education at Trinity College, Cambridge was interrupted due to what reason? Option A, financial difficulties. Tennyson ने 1827 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया और उन्होंने वहां आर्थर हेलन जैसे महान मित्र बनाए और द एपोस्टल नामक बुद्धिजीवियों के समूह से जुड़ा। 1831 में उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिससे उन्हें कैम्ब्रिज छोड़ना पड़ा। उन्होंने कभी भी डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन उनका साहित्यिक योगदान, विशेषकर पोयम चीफली लिरिकल, 1830 में उन्हें प्रतिष्ठा दिला चुका था। कैम्ब्रिज से ही उन्हें चांसलर गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, which of Tennyson's early poems published in 1827 was co-authored with his brother Charles? Option A, poems by two brothers. यह काव्य संग्रह 1827 में प्रकाशित हुआ और इन्हें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और उनके भाई चार्ल्स टेनिसन और कुछ हद तक फ्रेडरिक टेनिसन की कविताएं भी शामिल थी। इसमें लगभग 102 कविताएं थी, जिसमें से लगभग 40 पोएम्स टेनिसन की थी। यह उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। पुस्तक को गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था, लेखक का कोई नाम उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट, Tennyson's poem Timbuktu won which prestigious university prize in 1829? ऑप्शन बी, चांसलर गोल्ड मेडल। टिम्बक्टू कविता टेनिसन ने 1829 में कैम्ब्रिज में आयोजित कविता प्रतियोगिता में लिखी थी। यह कविता चांसलर गोल्ड मेडल, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित कविता पुरस्कार है, जीतने में सफल रही। विषय था टिम्बक्टू, एक दूरस्थ और रहस्यमयी अफ्रीकी नगर। अमेरिकन नहीं था, अफ्रीकी था। कविता में उन्होंने कल्पनाशीलता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया। यही रचना उनकी प्रतिभा को सार्वजनिक रूप से पहचान दिलाने वाली रचना मानी जाती है। भाई देखो, डिस्क्रिप्शन तो मिलेगा ही आप लोगों को, प्लस ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आपके लिए पनेसिया है। क्वेश्चन के लेवल आप जानते ही हैं, आप खुद स्कॉलर हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि
हम इसमें अपना टाइम क्यों दें, हमें आपको पढ़ाना है, तो आपको जो आपके लिए जो हितकर है हम करते हैं, और हमारे लिए जो हितकर है इन अ सेंस कि आप लोगों के लिए ये हितकर है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट, और कमेंट तो मस्ट है। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ये भी तो आप मेंशन करो। द लेडी ऑफ सैलेट। नेक्स्ट, which early Tennyson poems features the mythical figure of a woman weaving a magical web? Option A, The Lady of Shalott. द लेडी ऑफ सैलेट एक प्रसिद्ध बैलेड स्टाइल कविता है, नॉट मॉर्नफुल एलिजी लाइक। यह एक रहस्यमयी महिला की कहानी है जो किसी अभिशाप के कारण सीधे बाहर नहीं देख सकती थी और एक जादुई वेब बनते हुए दर्पण में परिवर्तित परावर्तित छवियां देखती थी। यह कविता मेडिवल रोमांस और आर्थेरियन लीजेंड से प्रेरित है। यह प्रतीक है आइसोलेशन, एकाकीपन और आर्टिस्टिक कॉन्स्टेंट का। कविता टेनिशन के इमेजरी और सिंबोलिज्म कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। In which collection did Tennyson publish The Lady of Shalott? For the first time? Option B, Poems 1832। द लेडी ऑफ सैलेट पहली बार 1832 की कविता संग्रह पोएम्स में प्रकाशित हुई। यह संग्रह टेनिशन की शुरुआती कल्पनाशील मेडिवल शैली का उत्कृष्ट मिसाल है। हालांकि इस संस्करण के को कुछ आलोचकों ने ऑब्सक्योर, एक्सप्लिसिट मीन्स अस्पष्ट कहा, फिर भी इसकी रोमांटिक और मिस्टीरियस टोन ने पाठकों को आकर्षित किया। इसे 1842 में संशोधित रूप से पुनः प्रकाशित किया गया था। When 1822, 1842 not 22। Next, published this time and republished 1832, published and republished 1842। Next, in which poem reflects Tennyson's fascination with the medievalism and Arthurian legend? Option A, Morte d'Arthur। मोटे डी आर्थर एक लंबी कविता है जो किंग आर्थर की मृत्यु और सर बिडीवर द्वारा उनकी तलवार एक्सक्लेवियर को वापस झील में फेंकने की कथा पर बेस्ड है। यह कविता विक्टोरियन मिडिवल रिवाइवल का उदाहरण है। यह रचना बाद में टेनिशन के एडल्स ऑफ द किंग 1859 टू 1885 में शामिल की गई। कविता में हेरोइक आइडियलिज्म, लॉयलिटी और मिथिक एटमॉस्फेयर का चित्रण है। यह आर्थरियन लीजेंड को मोरल एंड स्पिरिचुअल एलिग्री में बदलने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, Tennyson's Mariana draws inspiration from which Shakespearean plays? Option A, Measure for Measure। टेनिसन की कविता मैरियाना सीधे तौर पर शेक्सपियर की नाटक मेजर फॉर मेजर से प्रेरित है। शेक्सपियर में मैरियाना एक महिला है जो अपने प्रेमी एंजेलो द्वारा त्याग दिए जाने के बाद अकेलेपन में जीवन बिताती है। टेनिसन और मैरियाना में वही अकेलापन, निराशा और प्रतीक्षा का चित्रण मिलता है। कविता की पहली पंक्ति विथ ब्लैकेस्ट मोस्ट द फ्लावर प्लॉट्स वर थिकली ट्रस्टेड वन एंड ऑल वातावरण में इमोशनल डिसोलेशन को दर्शाती है। यह कविता उनके आइसोलेशन और लॉन्गिंग फॉर द लॉस्ट लव विषयों के प्रतीक के रूप में मानी जाती है।
Next, this poems, chiefly lyrical 1830, explores themes of isolation and despair. अरे अब तक तो सबको पता चल गया. मैरियाना. मैरियाना को 1830 के संग्रह पोएम्स चीफली लिरिकल में पहली बार प्रकाशित किया. इस कविता में टेनिसन ने गहन इमोशनल इमेजरी के माध्यम से लोनलीनेस, नेग्लेक्ट और वेटिंग को चित्रित किया. महिला पात्र अपनी टूट चुकी आशाओं और संकुचित जीवन को लेकर बहुत पीड़ित थी. एंड कविता में रिफ्रेन सी सेड आई एम ऑरी ऑरी आई वुड दैट आई वर डेड निराशा का सीधा चित्रण है. नेक्स्ट, टेनिसन early style is often associated with which literary movement? Option A, romanticism. यद्यपि टेनिसन एक प्रमुख विक्टोरियन कवि हैं, लेकिन उनकी कविताएं रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी, विशेषकर वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली की शैली और विषय जैसे प्रकृति, व्यक्तिगत भावना, मिथकीय कल्पना उनके प्रारंभिक लेखन में स्पष्ट रूप से दिखते हैं. पोएम्स चीफली लिरिकल 1830 और पोएम्स 1832 में यह रोमांटिक लहजा खास तौर पर झलकता है. अब आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पोएम्स का रिवाइज्ड वर्जन कब पब्लिश हुआ, रीपब्लिश ये कब हुआ. दिस इज कॉल टू एक्शन फॉर यू. नेक्स्ट, which poem reflects Tennyson engagement with classical mythology and the Trojan Wars? Onion. कविता में ग्रीक माइथोलॉजी के पात्र वनवन पर बेस्ड है, जो कि पेरिस ऑफ ट्रॉय की पहली पत्नी थी. कविता में उनका दुख और पेरिस द्वारा उनके छोड़ दिए जाने का शोक दर्शाया गया है. यह कविता ट्रोजन वार के शुरुआती संदर्भों को भी छूती है. कविता की टोन गहराई से मेलंकलिक और माइथोलॉजिकल है. नेक्स्ट, टेनिसन रिविजन to his early poems in the 1842 poems collection reflects what quality? Option B, poetic maturity. 1842 में poems in 2 volumes में ने टेनिसन ने कई प्रारंभिक कविताओं को फिर से संशोधित किया और रिफाइन किया. ये संशोधन दर्शाते हैं कि उन्होंने काव्यात्मक परिपक्वता, पोएटिक मैच्योरिटी प्राप्त की. शैली में सटल, कंट्रोल्ड और संरचित शैली उनकी सटल हुई, कंट्रोल हुई और संरचित हो गई. उदाहरण के लिए जैसे द लेडी ऑफ सैलेट की रिवाइज्ड वर्जन पहले की तुलना में क्लियरर एंड मोर पॉलिश्ड थी. इस संग्रह में यूलिसिस, लॉक्सले हल, मोटी डी आर्थर जैसे श्रेष्ठ रचनाएं भी शामिल थी. नेक्स्ट, which epic poem by Tennyson is considered a cornerstone of Victorian literature? Option B, Idylls of the King. Idylls of the King, published between 1859 to 1885. In Tennyson's epic retelling of the Arthurian legend, यह विक्टोरियन मूल्यों जैसे ड्यूटी, प्योरिटी, लॉयलिटी और फेथ का प्रतीक बन गया. इसमें किंग आर्थर और उनके सूरवीरों की कहानियां लॉन्सलॉट, गुनिवर, ग्रांट, गैलहेड आदि एलोगोरिकल रूप में दिखती हैं. यह कृति विक्टोरियन मोरालिटी और डाउट्स का प्रतिबिंब मानी जाती है. नेक्स्ट, In Memoriam, Arthur Henry Hallam is written in which poetic form? Option B, A, B,
BA quatrains. In memoriam Arthur Henry Hallam पूरी तरह से iambic tetrameter quatrains with ABBA rhyme C में लिखी गई. इसे इन मेमोरियम स्टांजा भी कहा जाता है. यह स्ट्रक्चर्ड yet इमोशनल स्टाइल विक्टोरियन ग्रीफ और स्पिरिचुअल टेंशन को व्यक्त करते में मदद करता है. What is the central theme of In Memoriam? Option B, grief and spiritual doubts. यह कविता टेनिसन ने अपने प्रिय मित्र आर्थर हेनरी हैलम की अकाल मृत्यु में सडनली डेथ पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा. यह कविता इसमें पर्सनल ग्रीफ, फेथ वर्सेस डाउट और आफ्टर लाइफ पर विचार की गहराई से चर्चा है. इससे विक्टोरियन एज के धार्मिक और दार्शनिक चिंताओं का सिंबॉलिक एलिजी माना जाता है. नेक्स्ट, दिस टेनिसन पोएम is a dramatic monologue spoken by a Greek hero longing for adventure. Option A, Ulysses. Ulysses is a dramatic monologue in which the aged Greek hero expresses his restlessness and desire to continue seeking knowledge and adventure. Even his old age means वो अपने इतने एज के बाद भी उसको एडवेंचर चाहिए जीवन में, उसको आराम नहीं चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं कि आराम हराम है, लेकिन उसको काम करना है मरते दम तक. उसके फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. यह कविता विक्टोरियन हेरोइज्म और इंडिविजुअल स्पिरिट का पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि हमें भी करना चाहिए. टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. नेक्स्ट, Idylls of the King is primarily based on which legendary cycle? Option A, Arthurian's legend. Idylls of the King draws from Sir Thomas Malory, De Morte the author, and medieval Arthurian romance. इसमें किंग आर्थर के कोर्ट के नैतिक पतन और उनकी ट्रेजिकली फेल्ड आइडियलिज्म को दर्शाया गया है. यह विक्टोरियन मॉरल वैल्यूज के साथ आर्थरियन मिथ का ब्लेंड है. मीन्स मिक्स है. नेक्स्ट, which poem explores Tennyson critique for women's education and gender roles? Option A, The Princess. The Princess 1847 एक लंबी नैरेटिव पोएम है जिसमें टेनिसन ने महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक असमानता और सामाजिक अपेक्षाओं को लेकर आलोचना और व्यंग प्रस्तुत किया है. इसमें एक काल्पनिक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके सामाजिक प्रभाव का चित्रण है. यह विक्टोरियन युग के जेंडर रोल्स पर बहस में एक महत्वपूर्ण कृति है. इस कविता की फेमिनिस्ट रीडिंग अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ऑल्सो इन इंटरव्यू. नेक्स्ट, इन मॉड, what is the protagonist's primary psychological conflict? Option D, social alienation. Maud's when 1855 एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में स्ट्रक्चर्ड है और इसमें एक इमोशनली डिस्टर्ब नरेटर है जो वायलेंस, मैडनेस, लव और एलिनेशन से जूझ रहा है. यह कविता विक्टोरियन समाज के मानसिक और सामाजिक विघटन को दर्शाती है. दिस फेमस लाइन, आई हेट द ड्रीडफुल हॉलो बिहाइंड द लिटिल वुड. नेक्स्ट, which Tennyson poem is known for its vivid depiction?
of the Crimean War? Option A, The Charge of the Light Brigade. यह कविता 1854 के BALA वाला क्लावा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के लाइट ब्रिगेड के वीरतापूर्वक लेकिन ट्रेजिकपूर्ण चार्ज पर बेस्ड है। एंड यह वीरता, देशभक्ति और विफल सैन्य रूप नेतृत्व का प्रतीक बन चुकी है। Their famous lines, "There's not to reason why there's but to do and die." Next, Tennyson's Enoch Arden explores which social issue? Maritime fidelity. Enoch Arden 1864 एक क्या है? नैरेटिव पोएम है जैसे जिसमें एक नाविक अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर समुद्र की यात्रा पर निकलता है और वर्षों बाद लौटता है, लेकिन देखता है कि उसकी पत्नी ने अब एक नया जीवन बना लिया है। यह कहानी त्याग, पारिवारिक प्रेम और नैतिक जिम्मेदारी का चित्रण करती है। नेक्स्ट, which poem is a short, vivid lyric describing a bird perspective? Option A, The Eagle. The Eagle published in 1851 एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली कविता है जो कि एक गरुड़, ईगल की दृष्टि और गति को दर्शाती है। जैसे he clasped the crag with crooked hands। यह कविता प्रकृति की शक्ति और एकाकीपन को उजागर करती है। टेनिसन की कविताएं केवल सौंदर्य और प्रकृति नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक गहराई से भी जुड़ी हैं। नेक्स्ट, Tennyson's poetry often reflected the tension between which two concepts? Obviously, faith and doubt. Tennyson's poetry, especially in Memoriam, Arthur Henry Hallam, is marked by the Victorian struggle between religious faith and rising tide of scientific skepticism. He often explored how belief is shaken in an age of material progress and Darwinian science. This duality, faith and doubt, is a hallmark of Victorian poetry. Next question. Which poetic device is most prominent in The Lady of Shalott? Option B, symbolism. The Lady of Shalott is rich in symbolism. The mirror symbolizes limited perception or artistic detachment. The curse and web represent artistic isolation and the tension between reality and imagination. The entire poem functions as a metaphor for the artist and artist's role in society. Next, Tennyson Ulysses employs which narrative technique? Obviously, dramatic monologue. Ulysses is structured as a dramatic monologue where the hero reflects on his past adventures and a desire to continue seeking new opens despite old age. The technique allows psychological depth and personal conflict to surface. Famous line, to seek, to strive, to seek, to find, and not to yield. Next, The Idylls of the King is an allegory for what Victorian concern? Moral decay. Though based on Arthurian legends, Idylls of the King is a thinly veiled allegory
for Victorian morality, purity, temptation, and decline. The downfall of Camelot mirrors the disintegrations of moral values in Tennyson's own time. Queen Victoria herself admired the moral depth of the work. Next, Tennyson's use the classical meters in his poetry reflect his engagement with which tradition? Option A, Greek and Latin literature. Tennyson was classically trained and deeply influenced by Greek and Roman texts, especially Homer and Virgil. Poems like Tithonus, Ulysses, and Owen reflect classical themes and metrical precision draw from ancient epics. A dramatic monologue technique in Ulysses, faith and doubt, Victorian conflict, belief versus science, symbolism, symbolic device in the Lady of Shalott, and moral decay, allegorical concern in the idyll of the kings, Greek and Latin literature, classical influence on Tennyson. Next question. West Tennyson poetry uses the refrain in the spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love. Option A, Locksley Hall. This famous is open quoted line appears in Locksley Hall in 1842, which reflects on lost love, youthful passion, and social progress. This line expresses romantic longing linked with the renewal of spring. Tennyson's The Lotus Eaters explores the theme of option A, escapism. Based on Homer's Odyssey, The Lotus Eaters features Ulysses' crew who want to abandon their duties and live in a dreamlike stupor. It reflects the temptation to escape the burdens of life and responsibility. Next, which poem reflects Tennyson's the response to Darwinian theories of evolution? Option A, In Memoriam AHH. Through written before Darwinian origin of species, In Memoriam anticipates and grapples with scientific ideas, including natural selection and the seeming cruelty of nature. The poem restless with grief, faith, and the implications of evolutionary thoughts. Next, Tennyson's use of the term nature, red in tooth and claw, appears in which work? In Memoriam, AHH. The phrase symbolizes the brutality and violence in nature, challenging traditional belief about a benevolent divine order. It's one of the most famous phrases expressing Victorian doubt. Next, this Tennyson poem is noted for its musicality and use of onomatopoeia. Option A, the brook. The brook mimics the flowing, babbling sounds of water through meter and onomatopoeia. The repeated line, for man may come and men may go, but I go on forever,
to the musical rhythm and thematic depth of transience versus continuity. Loxley Hall romantic longing in springtime escapism theme मतलब लोटस ईटर द लोटस ईटर्स का थीम क्या है escapism in memoriam Arthur Henry Hallam Darwinian thought and spiritual doubt in memoriam Arthur Henry Hallam nature's cruelty read in truth the brook and Macbeth and lyrical soundscape. Next, sorry. Tennyson's appointment as poet laureate followed which poet death? Option C. Robert Southey. Robert Southey was poet laureate before Tennyson. Upon Southey's death in 1842, Tennyson was appointed poet laureate, marking a new Victorian era in poetry. Next, Tennyson's poetry often reflects the Victorian fascination with option A. Medievalism. Tennyson's work often draws on medieval legends, especially Arthurian themes, Idylls of the King, showing the Victorian interest in medieval romance and chivalry. This medieval revival was a key Victorian cultural movement. Next, this Tennyson work addresses the Victorian concern with imperialism. Option C. The Charge of the Light Brigade. The poem memorializes a famous and disastrous British cavalry charge in the Crimean War. It highlights the Victorian patriotism, imperial valor, and the horrors of war, reflecting imperial themes. Next, Tennyson's In Memoriam engaged with scientific debate on the Victorian era, evolution versus creation. In Memoriam deals with grief and religious doubts, particularly about the implications of emerging evolutionary science for faith and divine providence. The poem restless and reconciling science and religion. Next, which Tennyson poem critique the materialism of the Victorian age? Option A. Locksley Hall. Locksley Hall criticized Victorian society materialistic values and complacency while expressing hope for future progress and social reform. Robert Southey, Poet Laureate Succession, Medievalism, Victorian Medieval Revival, The Charge of the Light Brigade, Imperialism and War Values, Evolution versus Creation, Science versus Religion Debate, and Locksley Hall critiques of the Victorian materialism. Next, Tennyson's The Princess is often associated with the feminist issue, women's education. The Princess is a narrative poem that critiques the limitations placed on women and advocates for women's rights to education. It explores gender role and the clash between traditional expectation and emerging feminist ideas. Next, this Tennyson poem reflects the Victorian ideal of duty and sacrifice. Option A. The Charge of the Light Brigade. The poem horrors and bravery and sense of duty of British soldiers who charged in the Crimean War despite overwhelming odds.
odds. The emphasize Victorian values of loyalty, courage, and sacrifice. Next, Tennyson's Idyll of the Kings is influenced by which earlier work? Option A. Mallory, Lee, Mortidy author. Idylls of the King retells the reinterprets the Arthurian legend of that Mallory compiled in Lee Mortidy author. It reflects Victorian medievalism and moral allegory through Arthurian themes. Next, this Tennyson poem reflects the Victorian anxiety about technological progress. Loxley Hull. Loxley Hall contains reference to the rapid change brought the technology and progress, but also conveys anxiety about their social impact. It expresses hope for the future alongside concern about loss of traditional values. Next, Tennyson's poetry often balances with two philosophical perspectives, Romanticism and Victorianism. Tennyson bridges Romanticism emphasis on emotion, nature, and individualism. And Romanticism, emotion, nature, individualism, and Victorian concern of social responsibility, faith, and progress. His work reflects in transition between these art, literary, and philosophical moments. Next, which critic described Tennyson as the poet of the age. मीन्स कौन से क्रिटिक ने टेनिशन को पोएट का एज कहा, पोएट ऑफ द एज कहा? ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड जो एक फेमस विक्टोरियन क्रिटिक और पोएट थे, उन्होंने टेनिशन को पोएट ऑफ द एज कहा। अर्नोल्ड को लगा कि टेनिशन की पोइट्री विक्टोरियन एरा के इमोशंस, डाउट्स और फेथ के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरह कैप्चर करती है। टेनिशन ने अपनी पोइट्री में उस जमाने के सोशल और साइंटिफिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट किया, इसलिए वो उस एरा का सबसे इम्पोर्टेंट पोएट में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, Tennyson's in memoriam influenced which later poets work? टेनिसन के इन मेमोरियम में कौन से लेटर पोएट्स को इन्फ्लुएंस किया? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट एंड ऑप्शन डी जी.एम. हॉपकिंस। ऑप्शन डी इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम टेनिसन का एक बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल पोएम है जो ग्रीफ और फेथ का स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता है। जी.एम. हॉपकिंस जो खुद एक जेसुइट प्रीस्ट और पोएट थे, उन्होंने टेनिसन की स्पिरिचुअल डेप्थ और पोइटिक स्टाइल से इंस्पिरेशन ली। हॉपकिंस की पोइट्री में भी फेथ और डाउट का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, जो टेनिसन के इन मेमोरियम से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट, which Tennyson poem was famously recited at the funeral of John F. Kennedy? Option A. Crossing the Bar. क्रॉसिंग द बार एक लेट टेनिसन का पोएम है जो डेथ को एक पीसफुल जर्नी के रूप में दिखाता है, जहां एक शिप सनबार क्रॉस करके खुला समुद्र में जाता है। इस पोएम का पीसफुल और होपफुल टोन इसे फनरल एंड मॉर्निंग ओकेजन्स के लिए परफेक्ट बनाता है। जेएफके के फनरल में ये पोएम रिसाइट किया गया, मीन्स जेएफके जॉन एफ कैनेडी डिसाइड किया गया, जो इसका टाइमलेस इमोशनल इम्पैक्ट दिखाता है। नेक्स्ट, Tennyson's The Idyll of the King
is often critiqued for its option A moral allegory. एडल्स ऑफ द किंग ऑर्डेरियन लीजेंड पर बेस्ड है, जिसमें टेनिसन ने विक्टोरियन मोरालिटी और वैल्यूज को एलिग्री के थ्रू प्रेजेंट किया है। ये पोएम विक्टोरियन सोसाइटी के आइडियल्स जैसे ड्यूटी, लॉयल्टी और मोरल फेल्यूर के कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करता है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पोएम थोड़ा ज्यादा मोरलिस्टिक और डायडेक्टिक हो जाता है, जो नैरेटिव को थोड़ा सा हैवी बना देता है। This Tennyson work was adapted into a popular opera by Arthur Sullivan. Option A, The Princess. आर्थर ने द प्रिंसेस को ओपेरा प्रिंसेस एडा में एडाप्ट किया, जो एक कॉमिक ओपेरा थी। द प्रिंसेस वुमेन एजुकेशन और जेंडर रोल्स पर एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है, जो उस जमाने में काफी प्रोग्रेसिव था। सुलिवन का एडाप्शन इस सीरियस टॉपिक को हल्का फुल्का और एंटरटेनिंग बना के ज्यादा लोगों तक ले गया। नेक्स्ट, Tennyson's The Lady of Shalott, inspired with pre-Raphaelite painter John Everett Millais। द लेडी ऑफ सैलेट एक बहुत पॉपुलर पोएम है टेनिसन की, जिसमें एक लेडी एक टावर में बंद होती है और दुनिया को सिर्फ अपने मिरर के रिफ्लेक्शन से देखती है। ये पोएम प्री रेफलाइट आर्टिस्ट के लिए बहुत इंस्पायरेशन बनी, स्पेशली जॉन एवरेट ने इस पोएम पर एक फेमस पेंटिंग बनाई है। मिलिस ने इस पेंटिंग में पोएम के विविड इमेजरी और ट्रेजिक ब्यूटी को ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। नेक्स्ट, this Tennyson poem is often interpreted as a critique of aestheticism। कौन सा टेनिसन का पोएम एस्थेटिसिज्म की क्रिटिक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए, द पैलेस ऑफ आर्ट। द पैलेस ऑफ आर्ट एक एलिगोरिकल पोएम है, जिसमें टेनिसन आर्ट के एक्सट्रीम एप्रिसिएशन को क्वेश्चन करता है। ये पोएम दिखाता है कि अगर आर्ट को सिर्फ खुद के लिए अप्रिसिएट किया जाए बिना किसी मोरल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो वो एक अकेला और खुदगर्ज हो सकता है। इसलिए इसे एस्थेटिसिज्म के क्रिटिक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, Tennyson's work is often compared to which contemporary poet? Option A, Robert Browning। टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों ही विक्टोरियन एरा के मेजर पोएट थे। इन दोनों के स्टाइल्स अलग थे, लेकिन दोनों ने विक्टोरियन सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इमोशंस, फेथ और डाउट को एक्सप्लोर किया। ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग और टेनिसन का लिरिकल स्टाइल दोनों को एक दूसरे का काउंटर पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट, This Tennyson poem is considered a precursor to modernist existential theme। कौन सा टेनिसन का पोएम मॉडर्निस्ट एग्जिस्टेंशियल थीम का प्रिकर्सर माना जाता है? यूलिसिस। यूलिसिस पोएम एक हेरोइक मोनोलॉग है, जिसमें यूलिसिस अपनी पुरानी एडवेंचर्स को याद करता है और फिर से जिंदगी में नए एक्सपीरियंसेस की तलाश में निकलने का डिसीजन लेता है। ये पोएम ह्यूमन कंडीशन, रेस्टलेसनेस में जो बेचैनी होती है और एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट को एक्सप्लोर करती है, जो लेटर मॉडर्निस्ट लिटरेचर के इंपॉर्टेंट थीम बने। नेक्स्ट, Tennyson's Crossing the Bar Up is often interpreted as a meditation on। टेनिसन क्रॉसिंग के द बार अक्सर किस चीज पर मेडिटेशन के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए, डेथ एंड द आफ्टर लाइफ। क्रॉसिंग द बार एक शॉर्ट और सीरीन पोएम है, जिसमें डेथ को एक पीसफुल जर्नी के रूप में दिखाया गया है, जहां
एक सिप सैंडबार को पार करके ओपन सी में जाता है। ये पोयम डेथ के बाद का सफर, आफ्टर लाइफ के बारे में होप और एक्सेप्टेंस के मैसेज देते हैं। नेक्स्ट, इन द लेडी ऑफ सैलेड, what symbolize the artist isolation from society? Option B, the tower. द लेडी ऑफ सैलेड की हीरोइन एक टावर में बंद है, जो उसकी आइसोलेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। वो दुनिया से फिजिकली और इमोशनली अलग है और अपने काम मिस लूम में ही बंद है। टावर उसकी दुनिया से दूरी और उसके क्रिएटिव आइसोलेशन को दिखाता है। नेक्स्ट, the refrain on the Lotus Eaters emphasized which mood? Apathy. The Lotus Eaters पोयम में सेलर्स एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ स्लो और ड्रीमी लगता है। रिफ्रेन बार बार ये मूड रिपीट करता है कि इन द आफ्टरनून दे केम unto a land in which it seemed always afternoon, जिसमें एक टाइप की थकान और अपैथी, निराशा जैसा इमोशनल स्टेट दिखाई देती है, जहां कोई स्ट्रगल या एक्साइटमेंट नहीं है, यूलिसिस की तरह। नेक्स्ट, इन यूलिसिस व्हाट डज द फ्रेज टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू रीच सिग्निफाई? परसिवरेंस मीन्स धैर्य, ये तो उसमें भी पूछता है, मिसेस फिल्ड में भी आपकी। ये फेमस लाइन यूलिसिस के डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय और कभी ना हार मानने, एकदम एंथुसियास्टिक पर्सन, हार ना मानने वाले स्पिरिट को दिखाती है। इसका मतलब है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, नए एक्सपीरियंस ढूंढना और कभी गिव अप ना करना। ये परसिवरेंस यानी लगातार कोशिश करते रहने का सिंबल है। नेक्स्ट, the structure in memoriam Arthur Henry Hallam is divided into how many sections? Option B, 133. In memoriam एक लॉन्ग एलिजी है जो 133 इंडिविजुअल सेक्शंस शॉर्ट पोएम्स में डिवाइडेड है। हर सेक्शन में एक छोटी मेडिटेशन होती है ग्रीफ, फेथ और डाउट पर, जो मिलके एक बड़ा पोइटिक मेडिटेशन बनाती है। नेक्स्ट, which recent poem uses the Spenserian stanza? Option B, Morte di Arthur. Morte di Arthur एक नैरेटिव पोएम है जिसमें टेनिसन ने स्पेंसरियन स्टांजा का यूज किया है। स्पेंसरियन स्टांजा एक स्पेसिफिक राइम थीम और मीटर होता है जो 9 लाइंस का होता है और रोमांटिक एंड विक्टोरियन एरा के पास के कई पोएट्स ने इसे यूज किया था। नेक्स्ट, Tennyson's The Brook personifies which natural element? Option A, a river. द ब्रुक पोएम में टेनिसन एक छोटी नदी रिवर ब्रुक को पर्सोनिफाई करते हैं। पोएम में ब्रुक को एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है जो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, छोटी छोटी बातें करता है और अपनी जर्नी डिस्क्राइब करता है। इससे नेचर की एक लाइवली और इटर्नल क्वालिटी समझ में आती है। नेक्स्ट, in Maud, the protagonist's descent into madness is triggered by unrequited love. Option A, मॉड का मेन प्रोटैगनिस्ट इमोशनली ब्रेकडाउन तब होता है जब उसका प्यार मॉड उसकी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करता। अनरिक्वेटेड लव इस इमोशनल हार्ट ब्रेक के साथ साथ उसकी मेंटल कंडीशन डिटेरियोरेट होती है
मतलब बद से बदतर हो जाती है, जो उसके मैडनेस में बदल जाती है। इस पोएम में लव का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डीपली एक्सप्लोर किया गया है। नेक्स्ट, which Tennyson poem features in the line half a leak, half a leak? और आंसर ए, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में ये लाइन बार बार रिपीट होती है कि है तो डिपिक्ट द फियरलेस कैवलरी चार्ज ड्यूरिंग द क्राइमेन वॉर। ये रिफ्रेन बैटल के इंटेंस स्पीड और अर्जेंसी को दिखाता है। ये पोएम विक्टोरियन एरा में मिलिट्री ब्रेवरी और ट्रेजेडी को हाईलाइट करती है। नेक्स्ट, द imagery in the eagle is predominantly visual. द ईगल पोएम की इमेजरी प्रीडोमिनेटली कौन सी है? विजुअल। द ईगल पोएम बहुत छोटी है पर बहुत पावरफुल है। विजुअल इमेजरी यूज करती है। पोएम में ईगल का टावरिंग प्रेजेंस, क्लिफ्स और स्काई को विविड तरीके से दिखाया गया है। विजुअल इमेजरी रीडर को ईगल के मेजेस्टी और उसकी सॉलिटरी नेचर को फील करवाती है। नेक्स्ट, Tennyson explores the themes of option A, immortality versus morality. टिटनस ग्रीक मिथ पर बेस्ड पोएम है जिसमें मोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी और मोर्टैलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। को इमोर्टैलिटी मिलती है, मीन्स को इमोर्टैलिटी मिलती है पर वो डेथ नहीं पाता, जिस वजह से वो इटर्नल सफरिंग में फंस जाता है। ये पोएम इमोर्टैलिटी की कर्स और मोर्टैलिटी की इनएविटेबिलिटी पर डीप रिफ्लेक्शन है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट, Tennyson's The Lotus Eaters draws from which episode in Homer Odyssey? Option B, The Lotus Eaters. द लोटस ईटर्स पोयम होमर की ओडिसी के उस पार्ट पर बेस्ड है जहां ओडिसियस के और उसके सेलर्स लोटस प्लांट खाते हैं, जो उन्हें अपनी रियलिटी से दूर करके एक ड्रीमी लेजी स्टेट में डाल देते हैं। टेनिसन इस एपिसोड को एक्सप्लोर करता है जहां लोग अपनी ड्यूटीज से भागकर एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, in Onon, Tennyson retells the myth of which Trojan war with this Trojan figure. Option C, Onan. इस पोयम में टेनिसन ट्रोजन फिगर ओनन की कहानी सुनाते हैं, जो पेरिस की फर्स्ट वाइफ थी। अपने बिट्रायल और दर्द को एक्सप्रेस करती है क्योंकि पेरिस उसे छोड़कर हेलन के पीछे भागा था। ये पोयम माइथोलॉजिकल और इमोशनल बिट्रायल पर फोकस करती है। नेक्स्ट, Tennyson's Tithons is based on which mythological figure granted eternal life? टेनिसन किस माइथोलॉजिकल फिगर पर बेस्ड है? टेनिसन थिकनेस किस माइथोलॉजिकल फिगर पर बेस्ड है जिसने इटर्नल लाइफ दी गई थी? ऑप्शन ए, इथनोस। ग्रीक मिथ का एक कैरेक्टर है जिसमें इमोर्टैलिटी दी गई थी पर डेथ नहीं। इसका इटर्नल लाइफ कर्स बन जाता है क्योंकि वो कभी मर नहीं सकता लेकिन बुढ़ा होता रहता है, मीन्स ओल्ड एज होता रहता है। टेनिसन इस ट्रेजिक इमोर्टैलिटी का दर्द बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट,
Which Tennyson open reimagines the quest for the Holy Grail? Option B, the Holy Grail. द होली ग्रेल पोएम टेनिसन की एडेंस ऑफ द किंग सीरीज का ही एक पार्ट है, जिसमें होली ग्रेल की सेक्रेट क्वेस्ट को ड्रामेटाइज किया गया है। ये पोएम स्पिरिचुअल प्योरिटी और डिवाइन मिशन के थीम्स को हाईलाइट करती है, जो विक्टोरियन एरा के मोरल कंसर्न से जुड़ी है। नेक्स्ट, Tennyson's Ulysses draws inspiration from which classical text? ऑप्शन ए, होमर ओडिसी। यूलिसिस पोएम होमर की ओडिसी से इंस्पायर्ड है, जिसमें यूलिसिस ओडिशियस अपनी एडवेंचर्स स्पिरिट और रेस्टलेस डिजायर टू एक्सप्लोर को एक्सप्रेस करता है। ये पोएम विक्टोरियन इंडिविजुअलिज्म और एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल को भी रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट, Tennyson's In Memoriam grapples with which theological concept? Divine Providence। इन मेमोरियम में टेनिसन ग्रीफ के थ्रू गॉड की डिवाइन प्रोविडेंस यानी कि ईश्वर की सब कुछ कंट्रोल करने वाली और सब कुछ अच्छी तरह से चलाने वाली शक्ति पर सोचता है। वो अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के डेथ के बाद ईश्वर के प्लान को समझाने की कोशिश करता है, फेथ और डाउट के बीच जो जो होता है, और वो संघर्ष करता है। नेक्स्ट, this Tennyson poem reflects a crisis of faith in the face of scientific progress. कौन से टेनिसन की पोएम साइंटिफिक प्रोग्रेस के सामने फेथ के क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शन ए, इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम। इन मेमोरियम विक्टोरियन एरा के साइंटिफिक डिस्कवरीज, स्पेशली डार्विन की इवोल्यूशन थियरी के चलते फेथ क्राइसिस को एक्सप्रेस करती है। टेनिसन डाउट्स और होप के बीच स्ट्रगल करता है, रिलीजन और साइंस के कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट, Tennyson's Crossing the Bar uses which metaphor for death? Tennyson's Crossing the Bar डेथ के लिए कौन सा मेटाफर यूज करता है? ऑप्शन ए, अ जर्नी अक्रॉस वाटर। क्रॉसिंग द बार में डेथ को एक सफर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें इंसान समुद्र या नदी पार करता है, सिंबलाइजिंग सोल का अर्थली लाइफ से है आफ्टर लाइफ में ट्रांजिशन। ये एक पीसफुल और एक्सेप्टिंग मेटाफर है डेथ के लिए। नेक्स्ट, in memoriam, Tennyson refers to the larger hope as इन मेमोरियम में टेनिसन द लार्जर होप को क्या कहता है? ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सैल्वेशन। यहाँ द लार्जर होप का मतलब है एक ऐसा होप जो सिर्फ पर्सनल रिडेम्पशन तक सीमित नहीं, बल्कि यूनिवर्सल सैल्वेशन यानी सभी के लिए अल्टीमेट सैल्वेशन या मुक्ति का आइडिया है। टेनिसन ये आइडिया एक्सप्लोर करता है कि शायद सबको एक दिन ईश्वर की कृपा मिलेगी। नेक्स्ट, this Tennyson poem features a saintly figure enduring extreme asceticism. Option A, Saint Simon Stylis। सेंट सिमोन स्टाइलिस पोएम एक सेंट की कहानी है जो एक पिलर स्टाइल पर कई साल एक्सट्रीम तपस्या और ऑस्टेरिटी करता है। ये पोएम फेथ, सफरिंग और डिवोशन के थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जो विक्टोरियन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। नेक्स्ट,
Tennyson's The Princess is written in which verse form? Option A blank verse. द प्रिंसेस मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखी गई है जो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ये वर्स फॉर्म इपिक और ड्रामेटिक पोइट्री के लिए पॉपुलर था, स्पेशली शेक्सपियर और मिल्टन ने इसे यूज किया था। टेनिसन ने भी इस फॉर्म को चूज किया ताकि नेचुरल कन्वर्सेशनल टोन और फॉर्मल पोइटिक स्टाइल दोनों मिल सके। नेक्स्ट, which Tennyson poem was written to commemorate the death of the Duke of Wellington? कौन से पोएम ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की डेथ कमेमोरेट का भी इस स्पेल्ट में पूछा जाता है, कमेमोरेट करने के लिए लिखी गई थी? ऑप्शन ए ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ये पोम स्पेसिफिकली ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की डेथ पर लिखी गई थी, जो ब्रिटेन के एक फेमस जनरल थे। टेनिसन ने ओड में उनकी ब्रेवरी और सर्विस को सल्यूट किया है। बाकी ऑप्शंस जैसे इन मेमोरियम और मॉड थीम्स है पे है, मीन्स हाँ। नेक्स्ट, लॉक्सले हर 60 ईयर आफ्टर कौन से आफ्टर रिविजिट्स थीम्स फ्रॉम विच अर्लियर पोएम? ऑप्शन ए लॉक्सले हल। लॉक्सले हल 60 ईयर आफ्टर में टेनिसन अपनी पहली फेमस पोएम लॉक्सले हल के आइडियाज को वापस लेकर आता है, जिसमें लव, होप और फ्यूचर के विजन्स है। एंड ये सीक्वल जैसा पोएम है कि जो टाइम के साथ चेंज पर्सपेक्टिव को दिखाता है। नेक्स्ट, विच टेनिसन पोएम इज द पेस्टोरल एलिजी? टेनिसन की कौन सी पोएम एक पेस्टोरल एलिजी है? इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलन। इन मेमोरियम पेस्टोरल एलिजी है जिसमें नेचुरल वर्ल्ड और रूरल इमेजरी का यूज होता है। ग्रीफ और मॉर्निंग एक्सप्रेस करने के लिए ये पोएम अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलन की डेथ के बाद लिखी गई थी और डेथ के बाद होप और फेथ को एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट, Tennyson's The Kraken is inspired by which mythological creature? Option A, a sea monster. द क्रैकन एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर के बारे में पोएम है जो डीप ओशन में रहता है और विक्टोरियन इमेजिनेशन में मिस्टीरियस और डेंजरस सी क्रिएचर्स को सिंबलाइज करता है। ये पोएम वास्ट अननोन नेचुरल फोर्सेस को एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट, विच टेनिसन पोएम features a dialogue between a soul and a body? कौन से टेनिसन पोएम में एक डायलॉग होता है सोल और बॉडी के बीच? ऑप्शन ए द टू वॉइसेस। द टू वॉइसेस एक फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें पोएट अपने माइंड के दो एस्पेक्ट्स के बीच बातचीत करता है। एक वॉइस जो जीने के लिए इंकरेज करती है और दूसरी जो डेथ और डिस्पेयर को प्रमोट करती है। ये सोल, स्पिरिट और बॉडी मीन्स स्पिरिट एंड मीन्स आत्मा, सोल एंड बॉडी मीन्स फिजिकल सेल या माइंड के बीच इंटरनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, Tennyson's The Hesperides draws from which mythological tradition? Option A Greek. The Hesperides ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है और हेस्पेरिड्स में वो निम्फ
है जो ग्रीक मिथ्स में गोल्डन एप्पल्स के गार्डन की रक्षा करती है। टेनिसन ने क्लासिकल ग्रीक मिथ से अपनी पोइट्री में काफी इंस्पायरेशन ली। नेक्स्ट, This टेनिसन poem critiques the commercialization of art. ऑप्शन ए, द पैलेस ऑफ आर्ट। द पैलेस ऑफ आर्ट को एक एलिगोरिकल पोएम है जिसमें टेनिसन आर्ट को एक पैलेस के रूप में दिखाता है, मीन्स आर्ट को एक पैलेस के रूप में दिखाता है और जिसमें आर्टिस्ट अपनी पर्सनल डिजायर को पूरा करता है, पर एंड में रियलाइज करता है कि वो पैलेस लोनली और इम्पटी हो गया है। ये पोएम कॉमर्शलाइजेस्ट सेल्फ सेंटर्ड आर्ट कल्चर को क्रिटिसाइज करती है, मीन्स मेटेरियलिस्टिक, फाइनेंशियल और सेल्फ सेंटर्ड आर्ट और कल्चर को क्रिटिसाइज करती है कि हम कोई काम पैसों के लिए करते हैं, ना कि सुकून के लिए। नेक्स्ट, Tennyson's Motley author was later incorporated into which larger work? मीन्स टेनिसन का मॉटेडी आथर बाद में किस बड़े वर्क का पार्ट बना? ऑप्शन ए, एडिल्स ऑफ द किंग। मॉटेडी आथर एडिल्स ऑफ द किंग का एक पार्ट है जो आर्थरियन लीजेंड्स के मॉडर्न विक्टोरियन पोइट्री में अडॉप्ट करता है। ये सीरीज ब्रिटेन के किंग आर्थर और उसके नाइट्स की कहानियां बताती है। नेक्स्ट, This टेनिसन poem is set in a utopian future. मीन्स कौन सी टेनिसन पोएम की एक यूटोपियन फ्यूचर को सेट करती है? लॉक्सले हल। लॉक्सले हल एक यंग मैन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई पोएम है जिसमें वो फ्यूचर के एक प्रोग्रेसिव और यूटोपियन विजन को इमेजिन करता है। प्रोग्रेसिव एंड यूटोपियन विजन को इमेजिन करता है जिसमें पीस, साइंस और ग्लोबल ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की बात की है, मीन्स और ग्लोबल ब्रदरहुड होगा। इसमें फ्यूचर की ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद को दिखाई गई है। ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट, टेनिसन्स The Charge of the Light Brigade was inspired by which historical event? Option A, Battle of Balaclava. The Charge of the Light Brigade 1854 का बैटल ऑफ द बैलाक्लावा में हुई एक फेमस कैवेलरी चार्ज पर बेस्ड है जो क्राइमेन वार का पार्ट था। इस बैटल में ब्रिटिश लाइट ब्रिगेड ने रशियन फोर्सेस को खिलाफ चार्ज किया, लेकिन गलत ऑर्डर्स की वजह से उनका मिशन डिजास्टरस हो गया। टेनिसन ने इस पोएम में ब्रेवरी और ड्यूटी के साथ साथ वार की ट्रेजेडी को भी हाईलाइट किया। क्राइमेन वार हिस्टोरिकल अकाउंट्स, टेनिसन पोइट्री कलेक्शन 1855। Next, this Tennyson poem is often cited for its feminist undertone. Option A, The Princess. The Princess एक नैरेटिव पोएम है जो विक्टोरियन एरा के जेंडर रोल्स और वुमेन्स एजुकेशन पर कमेंट करती है। इस पोएम में एक फीमेल प्रोटागोनिस्ट अपने आप को मेल डोमिनेट सोसाइटी से अलग करके एक वुमेन यूनिवर्सिटी बनाती है जो उस टाइम के लिए प्रोग्रेसिव और फेमिनिस्ट थॉट को रिफ्लेक्ट करता है। ये पोएम जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अर्ली पोइटिक वॉइस माना जाता है। एंड दिस सोर्स फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन विक्टोरियन पोइट्री, टेनिसन्स वर्क 1847। नेक्स्ट, Tennyson's The Eagle is an example of which poetic form? Option A, lyric. The Eagle एक शॉर्ट लिरिक पोएम है जो नेचर की पावरफुल इमेजरी और एक
सिंगल मोमेंट को कैप्चर करती है, नॉट सिग्नल, सिंगल मोमेंट को कैप्चर करती है। लिरिक पोयम जनरली पर्सनल फीलिंग और उस नेचर के विविड डिस्क्रिप्शंस पर फोकस करते हैं और ये पोयम उस ट्रेडिशन में आती है पोइट्री एनालिसिस टेक्स्ट, विक्टोरियन पोइट्री, एंथोलॉजीज। नेक्स्ट, this tradition poetry poem explores the theme of unrequited love through a female speaker. Option B, कौन वन। में ट्रेडिशन ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर उनकी वॉइस में अनरिक्वेटेड लव और हार्ट ब्रेक को दिखाता है। पेरिस की पहली वाइफ कौन वन ने को पेरिस ने हेलेन के लिए छोड़ दिया और उसके दर्द उस बिट्रायल का एक्सप्रेशन है। The source of mythological adaptation in Victorian poetry, Tennyson's collected poems. Next, Tennyson's In Memoriam was published in which year? Option B, 1850. In Memoriam आर्थर हेनरी हेलम में पब्लिश्ड 1850 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम टेनिसन ने अपने क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की मौत पर लिखी थी। पोएम ग्रीफ, फेथ, क्राइसिस और होप के थीम्स को एक्सप्लोर करती है और विक्टोरियन एरा के सबसे इम्पोर्टेंट एलिजीज में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट, which Tennyson poem is a dramatic monologue spoken by a fallen woman? कौन से टेनिसन की पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो एक फॉलन वुमन के पर्सपेक्टिव से बोली गई है? ऑप्शन ए, रिस्पॉ। रिस्पॉ एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो बाइबल के एक ट्रेजिक फिगर पे व्यू पॉइंट से लिखी गई है। रिस्पॉ ने अपने दोनों बच्चों को की मौत के बाद अपने आप को बैरन और सोसाइटी से अलग पाया, जैसे फॉलन वुमन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे ये पोएम उसके दर्द, सैक्रिफाइस और मदरहुड को हाईलाइट करती है। नेक्स्ट, Tennyson's The Brook is narrated from the perspective of। Tennyson's The Brook किस पर्सपेक्टिव से नरेटेड है? ऑप्शन ए, और स्ट्रीम। द ब्रुक एक पोएम है जो एक फ्लोइंग स्ट्रीम, नदी का छोटा सा टुकड़ा के नजरिए से लिखी गई है। पोएम में स्ट्रीम अपनी जर्नी, नेचुरल साइकिल और एवरलास्टिंग मूवमेंट को पर्सोनिफाई करता है, जिससे लाइफ की कंटिन्यूटी और नेचर की इमोर्टैलिटी का सिंबल माना जाता है। विक्टोरियन नेचर पोइट्री, टेनिसन्स लिरिकल वर्क। नेक्स्ट, Victorian poetry is a critique of religious fanaticism. ऑप्शन ए, सेंट सिमोन स्टाइलिट्स। सेंट सिमोन की पोएम है जो एक सेंट सिमोन एक पोएम है जो एक क्रिश्चियन एस्केटिक सेंट की एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर फोकस्ड है। इस पोएम में टेनिसन रिलीजियस फैंटेसिज्म के डेंजर्स और ह्यूमन लिमिटेशंस को दिखाया है और एस्केटिक के लाइफ की हार्श रियलिटीज को क्वेश्चन करता है। एंड टुडेज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, Tennyson's The Lotus Eaters is written in which stanzaic form? Option A, Spenserian stanza. The Lotus Eaters Spenserian stanza में लिखी गई है। इसका मतलब है कि हर स्टांजा 9 लाइन का होता है, जिसमें 8 पेंटामीटर एंड 1 हेक्सामीटर लाइन होती है और राइम्स इन ए बी बी सी होती है। ये फॉर्म एडमंड स्पेंसर के द फेरी क्वीन
से इंस्पायर्ड है और इस पोएम को एक लिरिकल और फॉर्मल ब्यूटी मिलती है। नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, which Tanisha's poem concludes with the line and may thee bear no mourning of the bar. Option A, crossing the bar. Crossing the bar is one of Alfred Lord Tennyson most famous and poignant poem, written in 1889. Near the end of his life, the poem uses a metaphor of a ship crossing of a sandbar to represent the transition of the life from life to death. The bar here symbolizes the sandbar that separates the harbor from the open sea, a metaphor for the boundary between life and afterlife. The final line, and may there be no mourning of the bar, expresses a hope for a peaceful, calm passing without suffering or sorrow. The poem reflects Tenisha's claim, calm and dignified acceptance of death, contrasting contrasting the fear and such uncertainty often associated with it. It is widely considered a meditation on mortality and the soul of journey beyond the physical world. The poem is structured as a short lyric composed in four quatrain, and it begins by describing a setting sun symbolizing the end of life. Tennyson hoped that when he crosses from life, the harbor, and the depths, the open sea, it will be without sadness or disturbance. The poem ends with a hopeful note about meeting the pilot, a metaphor for God or a spiritual guide after death. Crossing the bar is often read as Tennyson's farewell to life and his faith in a serene afterlife. In Memoriam deals with grief and mourning, but does not use a specific metaphor in life. In Memoriam, grief के लिए है, and Ulysses is a dramatic monologue about adventure and striving, but not about death peaceful passing. The Lady of Shalott is also a narrative poem focused on the isolated life and tragic fate of the lady with no reference to the war. And poems chiefly lyrical. 1830 poems 1832 The Princess 1847 In Memoriam 1850 On the death of Duke of Wellington 1852 The Charge of Light and Brigades 1854 Maud and Other Poems 1855 The First Four Idylls of the King 1859 The Idylls of the Hearth 1864 Enoch Arden 1864 appeared in the Idylls of the Hearth and Loxley Hall 1886 Demeter and other poems 1889. So that's it. आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखो, जितना बार हो सके उतना बार देखो, 2x पे करके देखो. दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन, ड्यूरिंग सिलेक्शन, ये एक दिन के लिए नहीं है. तो एंजॉय दिस वीडियो. Thanks for watching. If you found this video helpful, I hope definitely you find this video helpful for your examination. Don't forget to like, share and subscribe to English Minds for more expert literature insights. Comment below your favorite Tennyson's poem or question. Keep learning, keep signing. See you in the next video. Thank you. Until then, bye bye.